Hello everyone, welcome to Healing Presence, and here are your chakra readings for the month of November 2021. These readings tell you about which major chakra you need to work on this month and what's going on in the collective energy field of each zodiac sign this month. And I'll give you little tips that you can work on. You can listen to your readings for the sun sign, moon sign, rising sign, or any other sign that you just feel like listening to. The timestamps are in the description box. You can use them to go directly to a particular reading. Okay, and you can listen to all the readings also. Maybe you find some pearls of wisdom in each reading. And please know that these are general readings. Your personal readings may be slightly different. However, there would be something that would resonate with you in each reading. So, if you would like to work on clearing these chakra blockages, then I post healing affirmations based on these readings every month on my Facebook page and Instagram page. The links to that will be in the description box. So let's get started. First, begin with Capricorn. Hello Capricorns, how are you friends? Friends, you need to work on your crown chakra this month. And the other chakras in the reading, they are telling me that somewhere you are not able to express yourself properly. Maybe आप बहुत बातें करते हो मगर जो रियली आपको कहना है आप वो नहीं कह पा रहे हैं, या तो डर रहे हैं या लग रहा है क्या फ़ायदा है बोल के. Whatever, you need to open up to express what you truly want to express. And begin with first telling yourself what you want, what you desire, what are your opinions about certain things. Then all these problems are happening because somewhere you are not admitting your true feelings, your true opinions, and what is it that you truly desire. So be honest with yourself about it. And that will help you speak out and express yourself. Another thing, it's like you're stuck in abuse pattern where you are abusing yourself or you are abusing others, or this has happened in the past. So maybe that is the reason you're not able to speak up now. The past may be a past life thing, but this abuse thing is getting stuck to you. We need to clear this abuse energy and come out of the abuse pattern. Another thing that the reading is showing is the effect of curses. So there's an impact of curses over the collective Capricorn energies. For individual readings, you can get a particular specific reading and we can see whether it's there in your field or not, in your personal reading. And all these chakras, they are finally opening up if you work on your crown. And what you need to work on your crown is all the past traumas and shattering experiences you've gone through. You need to heal that. There's a lot of inner child healing required. And you can do the affirmations for Capricorn. I'm sure they would really help you. Okay? I hope this was a short one for you. But do the affirmations. Okay? Bye. Next we come to Aquarians. Aquarians, you need to work on your throat chakra, friends. Both the front and the back throat. And what it is telling me, somewhere you have closed down yourself for communication. And friends, if you close down communication, then it's bound to pester and fester hurts inside you. You will not know what is the truth. And somewhere if you have lost your self-worth, you are not believing in yourself, unless and until you open up for communication, first with yourself, then with others, open up to understand what is it the other person meant. If you're not clear, ask the person. But throat chakra, communication, self-worth, by any means you work on that. Other chakras that have come blocked in your reading is back heart, which shows there are a lot of stored hurts. Then you are not speaking truth to yourself.
अपने को झूठ झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं करो। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, तो आप पहले सच तो जानो कि जो आप सोच रहे हो मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, वो सच्ची में आपका सपना है या आप अपने आप को कह रहे हो नो आई शुड बी डिजायरिंग दिस। मोस्ट लाइकली what you are telling yourself is your desire is not your true desire. Please check it. It may be for someone, it may not be true for someone. But first check what is your true desire and then take actions to fulfill them. And your third eye is good. So even if you are having obstacles and challenges, you will be able to find a way out and reach your target. And again, self-abuse, others abuse. See, when you don't work towards fulfilling your dreams and visions, that is a kind of abuse only. When you're keeping yourself stuck, you're not moving towards creating all that will give joy to you, create abundance for you. So that is a form of abuse. So don't abuse yourself, don't abuse others. Maybe it's in a subtle form, indirect, but spot it, come out of it. Then there are impact of curses. Please clear that. And there is a feeling somewhere that I'm not playing all my roles perfectly. Based on what? Perfection based on what? Or out of your own standards. What are your standards? आपके मापदंड। बेटी ऐसी होनी चाहिए, बहू ऐसी होनी चाहिए, नेबर ऐसी होनी चाहिए, डॉक्टर ऐसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल ऐसी होनी चाहिए। आपके हिसाब से जो वो स्टैंडर्ड्स हैं आपको लगता है आप मीट नहीं कर रहे, तो एक बारी दोबारा देखो, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कर रहे आप अपने से, कहीं जो किसी के बस की नहीं आप अपने से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा देखिए, उसको करेक्ट करिए। इट्स नॉट दैट आप हाई एम नहीं कर सकते, लेकिन आप सोचो कि मैं अभी एक जंप मारूं और सीलिंग को टच कर लूं, नहीं हो सकता ना। तो उसको जो आपका टारगेट है उसको 4-5 में ब्रेक करके ग्रेडेड अपने माइलस्टोन्स डिसाइड करके एक ग्रेडेड जर्नी करिए। दूसरा, लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं ना, उसके लिए मल्टीपल रास्ते अवेलेबल होते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि आप टफ वाला रास्ता चुन रहे हैं, स्ट्रगल्स वाला, पेन एंड सफरिंग वाला रास्ता चुन रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपने से सच बोलेंगे, चीज़ों को जो जैसी हैं वैसी देखेंगे, चैलेंजेस लाइफ में जो आ रहे हैं उनको ऐसे नहीं सोचे ओहो अब तो ये ब्लॉकेज आ गया, अब तो ये ब्लॉकेज आ गया, मैं जो करता हूँ उसमें ऑब्स्टिकल आ रहा है, ऐसे सोचने की बजाय आप ये सोचिए ये जो चैलेंज आया है मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, हाउ कैन आई ग्रो, मैं क्या चीज अपने साथ ऐड कर सकता हूं, एम्पावर कर सकता हूं अपने आप को कि मैं ये सिचुएशन को आराम से डील कर सकूं। सो राइज, ग्रो विथ एवरी चैलेंज, ठीक है। और एफर्मेशन करिए, हर्ट्स हटाइए, सच बोलिए, सपनों को पूरा कीजिए। ओके, बाय। नेक्स्ट वी कम टू Pisceans. Pisceans, you need to work on your third eye, both front and back. So, जहाँ कहीं आपको लग रहा है मेरे तो सपने पूरे ही नहीं हो सकते, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा कि मेरे सपने पूरे हों, तो ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड आई पे किसी भी तरीके से आप काम कर लीजिए। आपको मेडिटेशन से करना है, कोई ब्रीदिंग टेक्निक से करना है, वॉट एवर हीलिंग मेथड यू नो, प्लीज वर्क ऑन योर थर्ड आई, ओपन इट। एंड जो बाकी चक्रा रीडिंग है वो ये बता रही है कि आपको बहुत ना फियर्स हो रहे हैं। कोई पूछे किस बात का डर है तो आपको नहीं पता किस बात का, एक अननोन फियर है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जरा पता करो, बैठो अपने साथ कि मुझे किस चीज का डर लग रहा है, क्या हो जाएगा। तो जैसे ही आप वो पता करते हो तो आपको लगेगा अरे ये तो डरने की बात नहीं है। और अगर हाँ मुझे इस चीज का डर लग रहा है तो उसका रास्ता निकाल लीजिए, उसका उपाय क्या है वो देख लीजिए, मगर बैठे मत रहिए, अपने को होल्ड बैक करके मत बैठे रहिए। और उससे क्या हो रहा है, आप डर के बैठे हो तो फिर आपको जो भी चाहिए ना, आप कहीं ना कहीं ये सोच चुके हो कि इस जन्म में, इस रियलिटी में तो मिलने नहीं वाला। तो आप अपनी ख्वाबों की दुनिया में पता नहीं कब कहाँ एनर्जीज आपकी स्कैटर हो रही है।
तो आप ना अंदर से बिखरे बिखरे हो रहे हो, आपकी सारी एनर्जी आपके पास यू इंटीग्रेटेड नहीं है। डर के मारे बेसलेस फियर्स हैं, उनको फेस करो। हर्ट्स भी हैं आपको, कोई गिल्ट है, हो सकता है प्रीवियस लाइफ टाइम की हो या इस टाइम की भी हो, दोनों की भी हो सकती है। कुछ कर्सेस का इम्पैक्ट है, अथॉरिटेटिव फिगर्स के साथ बन नहीं रही है, कुछ न कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हो आप अथॉरिटी फिगर्स के सामने। आप अपने को ही बेस्ट नहीं मिलने दे रहे हो। अब ये सब क्या है, इन सब की हीलिंग करनी है। एफर्मेशंस आप कर सकते हो, और सच बोलना बहुत जरूरी है। सारा की पॉइंट ये है, अपने से सच बोलो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कोई बड़ा अगर डांट रहा है तो क्या उसमें कुछ सच्चाई है, वो सच्चाई वाले पार्ट ले लो। क्या मैं इसमें इंप्रूव कर सकता हूं, तो करिए, ठीक है। तो जब आप इंप्रूवमेंट्स लाएंगे तो कौन ग्रो करेगा, आप ही तो ग्रो करेंगे। अगेन आपको एप्रिसिएशन के लिए और खुलना है। इसमें दिख रहा है पॉजिटिव मूवमेंट आ गया है चक्रा के अंदर, मगर और खुलने की जरूरत है। खुद को भी अप्रिशिएट करिए, दूसरों को भी अप्रिशिएट करिए। इससे आपकी एक एनर्जी, पॉजिटिव और अपबीट एनर्जी बनी रहेगी आपकी, ठीक है। अब्यूज में नहीं पार्टिसिपेट करना, किसी को गंदा नहीं बोलना है, अपने को भी गंदा नहीं बोलना है। ना अपने को टॉर्चर करो, ना दूसरे को टॉर्चर करो। किसी भी फॉर्म ऑफ अब्यूज में पार्टिसिपेट मत करो, ठीक है। एफर्मेशन जरूर अपनी देख लीजिएगा लिंक से, और एफर्मेशन लिखिए, ये चक्रास खुलेंगे। ओके, बाय। नेक्स्ट वी कम टू एरीज। हेलो एरीज, यू नीड टू वर्क ऑन योर फ्रंट थर्ड आई फ्रेंड्स। बैक थर्ड आई ठीक है आपकी, फ्रंट थर्ड आई में भी पॉजिटिव मूवमेंट है चक्रा का, मगर अभी बैलेंस नहीं है, थोड़ा और काम करने की जरूरत है। वो क्या है, कैसे होगी? आप अपने साथ बैठें, अपने अंदर झांकें, अपना सच जानें, कनेक्ट करिए, मेडिटेशंस करिए कि आपको खुद ही इंसाइट्स मिले, डायरेक्टली यूनिवर्स से आप गाइडेंस ले सको। प्लानिंग करिए चीज़ों के लिए, विदाउट प्लान मत चल दीजिए, थोड़ा बहुत प्लानिंग करिए, ठीक है। अगेन आपको रीडिंग में आपकी यही दिख रहा है कि बिल्कुल ब्लॉक्ड है थर्ड आई। अपने सपनों के बारे में क्लैरिटी लाइए, चूज तो करिए कि मैं अपने सपने पूरे करूं। अभी तो ये हालत हो रही है, सपने पूरे भी नहीं हो रहे और कोई रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा कैसे होएगा। हर्ट्स है, आप कुछ पकड़ के बैठे हो, या तो दुख दर्द या अनफॉरगिवनेस है, फियर है, कुछ चीज है तो जो आप पकड़ के बैठे, छोड़ दो, जाने दो चीजों को। हो गई, पीछे हुई थी, बात खत्म हुई, जाने दो, ठीक है। अपने को अप्रिशिएट करिए, दूसरों को अप्रिशिएट करिए, खुल के करिए। इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं अप्रिशिएट करने में, है ना। बोलिए, अप्रिसिएशन करिए। एक ये बता रहा है कि आपकी भी अब्यूज एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, जहां आपने लोगों को अलाउ करा है कि आपको अब्यूज करें, और जहां आपने खुद को अब्यूज किया और आपने दूसरों को भी अब्यूज किया, इस लाइफ टाइम में, प्रीवियस लाइफ टाइम में। तो ये अब्यूज एनर्जी बहुत बड़ा ब्लॉक बनी हुई है इस वक्त। और अगर आप बात करने में रिस्पेक्टफुल नहीं हो पाते, आप रूड, रफ, एरोगेंट हो जाते हैं, तो वो तो चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत समय तक चुप रहते हैं, जहां पे आपको तेजी से बोल के या अप्रोप्रिएटली डील करना होता, वहां तो करते नहीं, फिर रोकते रहते, फिर एक दिन वो प्रेशर कुकर की तरह फट जाता है, फिर आप बहुत गंदा बोलते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। तो ये तो काम नहीं आ रहा। तो आपको एप्रोप्रिएट डीलिंग रखनी है। जब कभी भी किसी से इंटरैक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो डिग्निफाइड वे में बात करिए। अपनी भी डिग्निटी रखिए, दूसरे की भी डिग्निटी रखिए। अगर आप गाली दे रहे हैं, थर्ड पर्सन सुन रहा है, तो वो क्या कहेगा? जिसको गाली दे रहे हैं उसकी बेइज्जती नहीं होगी, आपकी बेइज्जती होगी कि ये कैसी भाषा यूज कर रहा है ना। तो थोड़ा अपनी डिग्निटी मेंटेन करिए, दूसरे की भी डिग्निटी मेंटेन करिए। बात करने में इतना जलील नहीं करना किसी को। गुस्सा आ जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं मैंने अब्यूज नहीं करना दूसरों को, ना मुझे अपने को अब्यूज करना, अपने को भी गंदा नहीं बोलना। और आपको कहीं ये लगता है कि आपका एनवायरनमेंट में सब चीज बहुत सीरियस है, या मतलब लाइट हार्टेड प्लेफुल एनवायरनमेंट आपको रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा सा लाइटली लें, प्लेफुल हो, तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। बट हर बार ये मिल नहीं पाता है।
ठीक है। और कहीं ना कहीं जब अब्यूज का पैटर्न रहता है तो हम एक उस तरह का एनवायरनमेंट चूज भी नहीं करते। आई डोंट नो ये बात आपको कितनी समझ आ रही है इस वक्त, बट मेन बात समझने की ये है कि आपको अब्यूज का पैटर्न तोड़ना है। ठीक है, एफर्मेशन करिए, ये सारे चक्र जितने मैंने बताए हैं वो खुलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे बताइएगा कि कैसा रहा एफर्मेशन लिखने के बाद। ठीक है, बाय। नेक्स्ट वी कम टू टॉरियंस। टॉरस, यू नीड टू वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा फ्रेंड्स। एंड बाकी की रीडिंग, काफी सारे चक्रास आए हैं आपके इस बार, लेकिन मेन क्या है, आपको या तो हेल्थ कंसर्न्स हो रही हैं या फाइनेंशियल कंसर्न्स हो रही हैं। वो जो मटेरियल भौतिक दुनिया की जो कंसर्न्स होती है ना इस वक्त, वो आपको कंसर्न्स हो रही हैं। और हो सकता है तबीयत इतनी खराब हो कि कभी मरने का ही मन कर रहा हो कि अब तो और नहीं हो रहा भैया, चले जाएं। ऐसा नहीं है, आप कंसल्ट करिए। एक डॉक्टर से नहीं बैठ रहा, दूसरे से जाइए, होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए, कोई ऑल्टरनेट हीलिंग टेक्निक से। डिप्रेस मत होइए। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो उसके रास्ते हैं। आपने जो अभी तक ट्राई किया वो नहीं हुआ तो कुछ और होगा। सफरिंग मस्ट नहीं है, है ना, ये याद रखिए। कोई ना कोई रास्ता है, अभी तक नहीं पहुंचे, पहुंच जाएंगे। कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। हर्ट्स बहुत है, आपको लगता है आपको कोई प्यार नहीं कर रहा, आप हर्ट हो रहे हो, तो ऐसा नहीं है। वो आपकी या तो तबीयत खराब हो रही है या कोई बात है जो हर्ट हो गई है पुरानी, तो उससे ना हार्ट ब्लॉक हो रहा है चक्रा। ऐसा नहीं है। ओपन अप, फॉरगिव, ओपन अप टू रिसीव एंड गिव लव अनकंडीशनली। कोई कंडीशन नहीं है। प्रेम तो ऐसे ही बहता है तो उसको बहने दीजिए, लेकिन अपनी डीलिंग एप्रोप्रिएट रखिए। कोई मिसबिहेव कर रहा है तो उसका उचित जवाब दीजिए। समझ में आई? तो वहां जवाब नहीं देंगे और हर्ट होके बैठेंगे तो एनर्जी डाउन होती चली जाएगी, फिर कहीं और निकलेगी जहां पे कि कोई जरूरत नहीं थी। फिर ऐसे लगेगा आपने ओवर रिएक्ट कर दिया। तो ये सब नहीं, अपनी हर्ट्स को हील करिए। जहां लगता है कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, वहां देखिए क्या क्या सही में ये लोग प्यार नहीं करते, या इनके कुछ बिहेवियर्स से मैं हर्ट हो रही हूं और मुझे लग रहा है कि ये लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे। सच देखिए, अपना सच जानिए, दूसरों का सच जानिए, और सिचुएशंस का सच जानिए कि जब आपको हर्ट हुई उस वक्त एक्चुअली सिचुएशन थी क्या। थोड़ा सा देखेंगे ना तो आपका हार्ट में हल्का लगेगा। दूसरा, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस अगर आप ज्यादा रखते हैं तो वो आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। देखो, सबको कुछ ना कुछ चाहिए जीवन में। जो आपको चाहिए आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। ऐसे मत बैठिए कि दूसरा जना करे, नहीं, जो आपको जीवन में चाहिए आप खुद उसके लिए कुछ करिए। और ये कहीं की गिल्ट है, कर्सेस हैं, सेल्फ सैबोटाज, अपने इंटरेस्ट खुद ही आप सैबोटाज कर देते। गुस्सा आ गया, हर्ट हो गए, तो अब मुझे नहीं चाहिए। जो चीज चाहिए भी थी, मिल भी रही थी, तो अब गुस्सा हो गए, अब नहीं कर रहे। ऐसे नहीं, जो चाहिए वो ले लो, ऐसे वैसे कैसे भी मिले आप ले लो। बातचीत बहुत सोच समझ के करनी है। रूड, रफ, एरोगेंट नहीं होना है। एप्रोप्रिएटली डील करना है। किससे क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सब को ना वाइजली बातचीत में वो करिए। और अगर किसी के सीक्रेट्स हैं, कोई बात कॉन्फिडेंशियल रखनी है, तो थोड़ा अपना हाजमा पक्का करिए। सब चीज बोलने की नहीं होती, कोई बात छुपाने की नहीं है, लेकिन बताने की भी नहीं होती ना। थोड़ा सा वहां ध्यान दीजिए तो भी आपके इतना हर्ट्स नहीं होंगी आपको। बातचीत सोच समझ के करिए। फिर जो भी आप चाहते हो उसका एक आसान रास्ता चुनो, जिसमें आसानी हो, मिनिमम लोगों को परेशानी हो, आपको भी आसानी से काम हो जाए, वो रास्ता चुनो। और जो जीवन में चैलेंजेस आते हैं उनसे लर्न करो और ग्रो करो। नहीं तो जिंदगी तो टीचर है, वो तो बार बार वही टेस्ट पेपर लेकर आती रहेगी आपके सामने जब तक आप सीखोगे नहीं। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ना, टेस्ट टफ होता जाएगा। तो ऐसे ही देख लो कि मेरे को इससे क्या सीखना है। ये जो चैलेंज आया है, ऑब्स्टिकल आया है, व्हाट डज लाइफ वांट्स मी टू लर्न।
अगर खुद नहीं समझ में आ रहा है तो जो रेडिकल रीडिंग्स होती हैं उससे हम जान सकते हैं। आप सेशन ले सकते हो, किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो इन चीज़ों के लिए, एंड देन ग्रो। मतलब अपने को इतना बड़ा करो कि आप उस सिचुएशन को आराम से डील कर सको। अपनी विजडम पे काम करिए, सबकी सुनिए, सबकी समझिए, सारे पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, लेकिन फाइनली अपनी विजडम को इंपॉर्टेंस दीजिए। आपकी समझ क्या कह रही है इस सिचुएशन में, उसको भी सुनिए और उस पे अपने एक्शंस को बेस करिए। लेकिन मेन बात यही रहेगी कि जब आप किसी से बात करते हैं तो रूड, रफ, एरोगेंटली नहीं बात करनी है। हम्बलनेस के साथ, विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, एक डिग्निटी के साथ बात करनी है। ठीक है टॉरियंस, एफर्मेशंस करिएगा तो ये चक्रा ब्लॉकेजेस खुलेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, बाय। नेक्स्ट वी कम टू जेमिनाई। जेमिनाइज, आपको क्राउन चक्रा पे काम करना है। ठीक है, और बाकी आपकी रीडिंग मुझे बता रही है कि आप अपनी जो आपकी अंदरूनी समझ है आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, फिर उस पर एक्ट नहीं करते हो, सोचते रह जाते हो, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो, दूसरे ज़्यादा जानते हैं। नहीं, आपको हर सिचुएशन में देखना है, ओके ये सब ये कह रहे हैं, मेरी समझ क्या कह रही है, और आपको लगातार अपनी समझ पे चलेंगे तो सक्सेस मिलेगी। ठीक है, दूसरों की सुनिए, दूसरों से पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, दूसरों से भी सुन के अपना ज्ञान बढ़ाइए, लेकिन फिर अपने अंदर डिसीजन लीजिए कि मुझे क्या समझदारी लग रही है। अच्छे से बातचीत करिए, रूड, रफ, एरोगेंट बिहेव नहीं करना है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। बिल्कुल लोगों के सामने कुछ बोलना ही नहीं है, ये भी नहीं, और जोर से रूडली बोलना है वो भी नहीं। एक बैलेंस मेंटेन करिए अपनी बातचीत में, समझदारी से बात करिए। ठीक है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपने या तो खुद को या किसी और को लेट डाउन करा है, ऐसा फीलिंग है, तो वो क्लियर करने की जरूरत है। और आपको ऐसा लगता है सब चीजें स्ट्रगल है, ना एनवायरनमेंट में ईज है, ना आपके अंदर ईज है, चैलेंजेस को ओवरकम करना बहुत मुश्किल है, ऐसा फील हो रहा है। आप कोई मतलब ना तो अपने को जॉय एंड प्लेजर दे रहे हैं, ना लोगों को जो छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं जिनसे उनको जॉय एंड प्लेजर मिलेगा। डिस्कनेक्ट सा हुए हुए आप अपने आप से, अपनी खुशियों से, जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनसे। अपने से सच नहीं बोल रहे हैं, अपने से सच बोलिए हर बारे में। दूसरों को क्या बोलना है वो बात नहीं है, अपने से तो सच बोलिए। फिर आप ना ऑर्डर से या लैक ऑफ ऑर्डर से परेशान हो रहे हैं, या तो बहुत खेओस है आपकी लाइफ में, कोई भी चीज सिस्टमेटिक नहीं है तो आप उससे परेशान हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा ऑर्डर एंड सिस्टम्स हैं तो आप उससे परेशान हो रहे हैं। फिर कोई चीज थी जो आपने बहुत टाइटली पकड़ रखी थी, या तो हर्ट थी, गुस्सा था, प्यार था, माफी थी, कुछ तो था, वो आपने छोड़ना शुरू किया, आपने लेट गो करना शुरू करा है, और करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रीडिंग बता रही है, लेकिन मेन चीज जो आपको काम करनी है वो यही है कि अपनी विजडम पे ऑपरेट करना है, अंदर की, दिमाग की नहीं, आपके अंदर एक विजडम है जो कहेगी ये समझदारी है, इस सिचुएशन में ये समझदारी है, ये करना, वो चीज करनी है आपने। ठीक है, एफर्मेशंस लिखिए और ये चक्रा ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। ठीक है, बाय। नेक्स्ट वी कम टू, which sign is it? Cancerians. Cancerians, you need to work on your heart chakra. हर्ट हो गई हैं बहुत ज़्यादा, या तो पुरानी उठ के आ गई हैं एंड यू आर नॉट फीलिंग लव्ड। किसी भी तरह से हार्ट चक्रा को खोलिए और थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस बनाइए डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, मटीरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फैमिली लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। कहीं ना कहीं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, और जो समस्याएं हैं उनका जो कारण है ना, रूट कॉज जो है, कहीं आपको लग रहा है मुझे नहीं देखना, तो आप अवॉइड कर रहे हैं कॉजेस को देखना, तो फिर सॉल्यूशंस तो कैसे मिलेंगे? अलाइनमेंट ही बिगड़ा हुआ है।
ग्राउंडेड नहीं है, हम हवा में, हमें अपनी जमीनी हकीकत से आप टच में नहीं है। और जब आप ग्राउंड रियलिटी से टच में नहीं है तो आप कुछ भी सोच रहे हैं ये समस्या है वो समस्या है, जबकि ऑन ग्राउंड वो समस्या है ही नहीं। आप ही टच पे नहीं हो, ग्राउंड से टच नहीं कर रहे हो। चीजें को देखो कि कैसी हैं, ट्रुथ क्या है। अपने से नहीं सच बोल रहे, किसी से भी सच नहीं बोल रहे। सच बोलिए, अपने ट्रुथ को जानिए, अपने सच पे रहिए। 90% समस्याएं तो उसी से सॉल्व हो जाएंगी। सच बोलिए, सच सच सच। झूठ बोलेंगे, झूठी दुनिया क्रिएट करेंगे तो फिर हर्ट्स ही होंगी ना, जो सच ही नहीं है। आपको लग रहा है ये जना मुझे कंट्रोल कर रहा है, ये जना मुझे हर्ट कर रहा है, ये जना मेरा साथ नहीं दे रहा है, ये जना मुझे मतलब हेल्पलेस फील करा रहा है, जबकि वो बात सच हो ही नहीं सकती। आपकी रीडिंग देख के लग रहा है ज्यादातर चीजें जो आप सोच रहे हो, जिनसे आप हर्ट फील कर रहे हो, अनलव्ड फील कर रहे हो, वो सच ही नहीं है। जमीनी हकीकत देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि सच क्या है। प्लीज फाइंड आउट द ट्रूथ। जो चीजें आपको जॉय दे, प्लेजर दे, वो करिए। आपके परिवार के लोग, आपके फ्रेंड्स, उनको जो अच्छा लगता है, उनको जो जॉय देता है, वो छोटी छोटी चीजें करिए। और ये जो बेकार के डर है ना, मैं ये बोलूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। आप देखिए मुझे क्या हो जाएगा, अपने आप से पूछिए क्या हो जाएगा अगर मैंने ये किया तो, या मैंने ये कहा तो। जब तक आंसर ना मिले बैठे रहिए अपने साथ, नहीं मैं तो आंसर लेके ही उठूंगा। तो आपको पता चलेगा कोई आंसर ऐसा है नहीं कुछ। और अगर आप सच्ची में अपने अंदर चले गए, डीप टच किया, तो आपको लगेगा कोई डर की बात ही नहीं है। इनफैक्ट जो मैं करना चाह रहा हूं वो चाहते हैं कि वो मैं करूं उनके लिए। आपका ये कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, एक डिस्कनेक्शन हुआ पड़ा है सब चीजों से। खुद से कनेक्टेड नहीं है, दूसरों से कनेक्टेड नहीं है, जमीनी हकीकत से कनेक्टेड नहीं है। हेल्पलेसनेस फील करते हैं, वो द बिगेस्ट लाई है। यू आर नेवर हेल्पलेस, इट कैन ओनली बी अ चॉइस। सो लेट्स मेक अ डिफरेंट चॉइस। एंड चीजें आसानी से हो सकती हैं, उसके लिए डिफिकल्टीज मत पैदा करिए। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे बोल रही हूं, लेकिन अगर आप सच्ची में बैठेंगे अपने साथ तो आप जानेंगे कि इतनी कोई समस्या है नहीं जितनी मैं अपने आप से कह रहा हूं या कह रही हूं। अपने को भी अप्रिशिएट करिए, दूसरों को भी अप्रिशिएट करिए। और जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है ना, आपको दिख तो सब रहे हैं लेकिन आप उनको यूज ही नहीं कर रहे। तो अगर कोई चैलेंजेस हैं लाइफ में तो उनको सॉर्ट आउट तो करिए, उनके कारण तो देखिए कि ये क्यों चैलेंज है, ये क्या सिखाना चाहता है मुझे, मैं वो सीख लूं, ग्रो करूं, अपने को काबिल बनाऊं, इश्यूज को रिजॉल्व करूं, अपनी समझदारी डेवलप करूं, अपनी समझ पे विश्वास रखते हुए आगे चलूं। अब्यूज नहीं करना, ना खुद को ना दूसरों को। और एक ये डर है मैं कुछ कह दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगी। ये सब फालतू के डर है। मन पक्का करिए कि मुझे ये करना है, ये टारगेट है मेरा, ये मेरे ड्रीम्स एंड विजन्स है, मैं उस पे ही फोकस रखिए और आगे बढ़ते जाइए। अपने ड्रीम्स एंड विजन से डिस्कनेक्ट मत करिए। फुलफिल की तरफ उस सारा दिमाग जब उस तरफ लगाएंगे ना कि ये काम मैं कैसे करूं, या जो भी आपका टारगेट है कि ये मैं कैसे करूं, उसमें एंगेज रहिए, तो ये सब फालतू का ये सब नहीं होगा। और ये हो क्यों रहा है, ये जनरल रीडिंग है, आपकी रीडिंग डिफरेंट हो सकती है, बट जो कलेक्टिव रीडिंग है कैंसेरियंस के लिए, ये जो एंटिटी अटैचमेंट्स होते हैं, इसकी वजह से ज्यादा समस्या बनी हुई है। तो आप किसी भी मोडालिटी से आप अपना ऑरा क्लीन करिए, या बॉडी में है या जैसे भी, तो एंटिटी क्लियरिंग सेशंस आप ले सकते हैं, या कोई भी और मेथड से आप एंटिटी क्लियरिंग्स करिए। और एफर्मेशन है, एफर्मेशन जरूर करिए, इट विल हेल्प क्लियर ऑल दीज blockages for you. Okay, bye. Next we come to Leo. Leos, you need to work on your crown chakra. आप काम कर रहे हैं और करने की जरूरत है।
पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है, रीसेंट पॉजिटिव मूवमेंट क्राउन चक्रा में दिख रहा है, मगर और करिए, अभी थोड़ा सा और अच्छे से उसको क्लॉकवाइज घुमाना है अपने को, ठीक है। जो बाकी की रीडिंग है आपकी, उसमें मल्टीपल चीजें आई हैं, मैं बताऊंगी, लेकिन मेन चीज है कि आप अपनी समझदारी से काम करिए, जो आपकी समझ कहती है उससे काम करिए। आपने करना शुरू किया, लियो, आपने काम किया, अपने में बदलाव ला रहे हैं आप, और करना है उसको। कंटिन्यू वर्किंग बेस्ड ऑन योर इनर विजडम। और आप, ऐसा भी है कि आप अब्यूज वाले पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं, वेरी गुड, प्लीज कंटिन्यू डूइंग इट। और जितने भी अभी भी क्या है, जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है ना, जो आपके पास मदद अवेलेबल है, आप सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं बेस्ट। आप दूसरों से भी मदद लीजिए, जहां जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल आप यूज करिए। पैसा है तो खर्च करिए ना उसको अपने लिए। दोस्त हैं तो उनकी मदद लीजिए। कोई हीलिंग मोडालिटीज आपको आती हैं तो उनको यूज करिए। इतने सारे टूल्स हैं आपके पास, उनको यूज करिए, ठीक है। वो एक एरिया है आप जो और कर सकते हैं। अपनी बात को कहिए, बिना कहे कैसे लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हैं। तरीके से कहिए, अपना सच बोलिए, तरीके से बोल लीजिए, ठीक है। फिर है कि कोई चीज के लिए ऐसा लग रहा है बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, कब होगा कब होगा, तो आप अगर वेट ही करते रहेंगे तो खाली वेटिंग से तो कुछ नहीं होगा। उस पीरियड में कुछ करिए ना। जो भी टारगेट है आपका, उस तरफ उस पहुंचने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूं, कदम उठाते रहिए तो कहीं पहुंचेंगे। वेट करते रहेंगे तो बस ऐसे ही लगेगा भैया कब तक वेट करें, उससे कुछ होगा नहीं। कुछ कर्सेस का भी इंपैक्ट है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, और एक सेल्फ सैबोटाज कर लेते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। या तो गुस्सा आता है या क्या होता है, या आपको लगता है आप काबिल नहीं हो, आप में समझ नहीं है, कुछ तो ऐसे सोच के ना आप बड़े लोगों के सामने, स्पेशली अथॉरिटेटिव लोगों के सामने, आप ऐसे चॉइसेस कर लेते हो, ऐसा बिहेवियर चूज कर लेते हो जिससे कि किसी का भला नहीं हो रहा, आपका तो डेफिनेटली भला नहीं हो रहा। और फिर आपके सपने पूरे नहीं होते, फिर आपको लगता है मैं काबिल नहीं हूं, वो सब चीज अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म, लो सेल्फ वर्थ, उसमें फंस जाते हैं। अब इसका की पॉइंट क्या है, चाबी क्या है इन सबको, ब्लॉकेजेस को खोलने की, कि आप जो आपकी समझ है उसको वैल्यू दीजिए। सब अपनी अपनी समझ से बोलेंगे, एक्सपर्ट्स भी होंगे, उनकी भी सुनिए, लेकिन आपकी भी समझ कुछ कहती है, उस पर विश्वास करिए, उसको कुछ वैल्यू दीजिए कि आपका क्या सोचना है इस बारे में, किसी भी बारे में, और फिर उसी पे ऑपरेट करिए। अगर उस रास्ते चल के कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो फेस करिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। एफर्मेशन करिए तो सारे ब्लॉकेजेस खुलेंगे, ओके। नेक्स्ट वी कम टू वर्गोस। वर्गोस, you need to work on your third eye chakra, both front and back, ठीक है। सब सपने पूरे हो सकते हैं, रास्ते हैं, हो सकता है आप जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं, कोई और तरह का रास्ता हो, ऐसे जिग 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 करके रास्ता हो, वो भी तो हो सकता है। सो थर्ड आई पे काम करिए अपनी, और जो आपके माइनर चक्रास बता रहे हैं, जो और बाकी की रीडिंग है आपकी, उसमें काफी सारे चक्रास हैं, लेकिन जो मेन चीज जिस पे आपको काम करनी है वो है आपको अपना फेथ रीस्टोर करना है। जहां कहीं भी आपका फेथ हिल गया है, किस पे हिल गया है पहले तो देखिए। आपका फेथ अपने आप पे हिल गया है, इंसान की नेकी पे हिल गया है, भगवान पे हिल गया है, रिश्तों पे से हिल गया है, अपनी काबिलियत पे से हिल गया है, इस पूरी दुनिया पे से ही विश्वास उठ गया है, या ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे, परमात्मा पे विश्वास हिल गया है। वैसे तो पूरा ही ब्लॉक आ रहा है, लेकिन तो आपको सबसे पहले अपना फेथ गेन करना है, ठीक है। जो आपके लिए एफर्मेशन है इस मंथ की, वो प्लीज जरूर करिए, वो आपकी मदद करेगी। और जो बाकी चीजें आपकी रीडिंग बता रही है कि आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे हो,
तो जिंदगी में परेशानियां तो चलती रहेंगी, ऊट पटांग चीजें होती रहेंगी, लेकिन जिंदगी में ओपन करिए इंजॉय करने के लिए भी। छोटी छोटी चीजें जो आपको जॉय देती है, प्लेजर देती हैं, वो करिए अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। और दूसरे अगर आपके लिए करते हैं उसको इंजॉय करिए, रिसीव करिए उस जॉय एंड प्लेजर को। अपनी बात कहिए, जो कहना चाहते हैं उसे कहिए तो सही। अपने को कम मत समझिए, आप अपने को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने को क्रिटिसाइज मत करिए, अपने को स्वीकार करिए आप जैसे भी हैं। हर किसी में कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ अजीब बातें होती हैं हम सब में। तो बस खुद के बारे में वो जानिए और स्वीकार करिए, उससे ज्यादा खुशी आएगी। आप अपने जो जजमेंट्स पास करते रहते हैं अपने ऊपर, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। अपने को नेगेटिव नहीं बोलना। जो वीकनेसेस हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं, या जिन लोगों की वो स्ट्रेंथ है उनसे हेल्प ले सकते हैं। जरूरी तो नहीं ना हम हर चीज में ही अच्छे हों, बट बिल्ड कर सकते हैं ओवर द टाइम। हम अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स भी बना सकते हैं। तो इट्स अ चॉइस। वेट मत करते रहिए कि कोई चीजें अपने आप ही होंगी। और अगर आपको लगता है कि वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा चेयरफुल रहिए। ट्रेन में जा रहे हैं, अगर डिले हो गई है तो वहां पे भी तो वेटिंग रूम में बैठते हैं ना, तो मस्ती करते हैं, कुछ खाते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो अगर वेट ही करना है, आपको ऐसा लगता है कि इंतजार करना ही सॉल्यूशन है, तो मस्ती से करिए, उस पीरियड में चेयरफुल रहिए, इंजॉय करिए। आज में जो खुशी है उसको इंजॉय करिए। वो सपना कब पूरा होगा, वो सब चीजें होंगी जब होंगी। आज में कैसे इंजॉय कर रहा हूं ये देखिए। फिर आपकी कुछ ओथ्स, वाउज एंड गिल्ट हैं, प्रोबेबली इस लाइफ की या प्रीवियस लाइफ टाइम की, वो चीजें भी अभी ऊपर आ गई हैं, उनको क्लियर करने की जरूरत है। और थोड़ा थोड़ा डर लगता है एक्सपैंड करने में, सब सपने पूरे हो जाए, खुश होने में डर लगता है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, मगर बजाय कि उस डर को फेस करें, खुशियां बढ़ाइए। अपना डर अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। और लोगों से आपने अपना बातचीत का तरीका चेंज किया है, वेरी गुड। जो भी आपने अपने अंदर चेंज लाया है बहुत अच्छा है, उसको और कंटिन्यू करिए। ये सब आपकी रीडिंग बता रही है। अब आप एफर्मेशन जरूर करिएगा, इट विल हेल्प यू। ओके, बाय। नेक्स्ट इज वी कम टू लिब्रा। Libra, you need to work on your crown chakra, friends. And the things that your reading is showing me, इस वक्त ना एक पावर स्ट्रगल हो रही है कहीं आपकी लाइफ में, बड़ों के साथ या आपके अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल चल रही है, जिसमें कि जो आप चॉइसेस मेक कर रहे हो, डिसीजंस या सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करना चाह रहे हो, वो ना समझदारी से प्रॉबेबली नहीं कर रहे हो। आप चेक करो कि जो मैं सोच रहा हूं कि मैं ये डिसीजन ले लेता हूं, क्या उससे आपका ट्रूली भला होगा, या सिर्फ गुस्से में कर रहे हो, या डर के मारे कर रहे हो, या सिर्फ चीजों को अवॉइड करने के लिए कर रहे हो। बिगर पिक्चर देखो, क्या उससे ट्रूली आपका फायदा होगा। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो रुको, पहले देखो और क्या रास्ते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस एंड अदर सॉल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होना, सेल्फ सैबोटाज नहीं करना है, अपना ही नुकसान खुद नहीं करना है, ठीक है। कुछ कर्सेस का इम्पैक्ट है, आपको डर लगते रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो चुप ही रह जाता हूं या चला जाता हूं, अवॉइड कर देता हूं। वो डर के मारे आप कर रहे हो, और एक आपको लगता है आपको कोई हेल्प नहीं है, हेल्पलेसनेस फील होती है आपको। ऐसा नहीं है, आप कोशिश तो करिए, हेल्प अवेलेबल है, आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। शुरुआत तो करिए, उस हेल्पलेसनेस की एनर्जी में मत रहिए। और जो आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, वो आप एक बारी प्लीज ऑनेस्टली देखिए, आप क्या कर रहे हो अपने सपने पूरे करने के लिए। यहां दिख रहा है कि आप नहीं कर रहे हो, आप वेटिंग में हो या क्या कर रहे हो पता नहीं, लेकिन खुद से गो गेटर बनिए, आगे बढ़िए और अपने जो चाहिए वो पूरा करिए। दूसरों के सहारे मत बैठिए। सब लोग परेशान है, वो गोज लिब्रास,
सब लोग परेशान है, वो अपनी जिंदगी नहीं संभल रही लोगों से, तो आपके लिए क्या करेंगे? तो आप अपने लिए खुद करिए जो करना है, अपने से सच बोलिए, लोगों से डिग्निफाइड वे में बात करिए, मतलब जो बातचीत है ना, एक आराम से हम्बलनेस के साथ बात करिए, एप्रिशिएट करिए, रो के मतलब एप्रिशिएट कर भी रहे हैं लेकिन जब तक बाहर निकला तब तक 10 में से 1 ही बाहर निकला, ऐसे क्यों कंजूस बन रहे हैं? थोड़ा खुल के अप्रिशिएट करिए, खुद को भी और दूसरों को भी। और बातचीत बहुत समझदारी से करनी है, किससे कितना कब बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या चीज कॉन्फिडेंशियल रखनी है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीजें बहुत ध्यान देनी है आपको, ठीक है? और ये सब तब होगा जब आप जो भी सल्यूशन निकाल रहे हैं प्रॉब्लम का, वो समझदारी से निकालेंगे, सिर्फ एक इमोशन और गुस्से और डर में नहीं। हर सिचुएशन का एक विन विन सोल्यूशन होता है, जिसमें अपनी बात भी रह गई, हम भी ठीक हैं और दूसरा भी ठीक है, ऐसा भी कोई रास्ता होता है, हमेशा होता है। अ विन विन सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, सर्च फॉर इट एंड चूज दैट। आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा रास्ता क्या है, तो कोई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे इसमें। और नहीं तो एफर्मेशन जो इस महीने की आपकी है वो करिए, तो आपके सारे ब्लॉकेजेस खुलेंगे और आपको खुद ही आपको अंदर से रास्ते समझ आने लगेंगे। ऐसे अल्टीमेटली तो खुद ही करना है ना, दूसरों पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? ठीक है, बाय। नेक्स्ट वी कम टू स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियोस, आपको जो मेजर चक्रा, तो ऐसा कोई काम मेजर नहीं करना, बेसिकली आपको अलाइनमेंट पे काम करना है। आपका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुआ है। अलाइनमेंट मीन्स कुछ ऐसी जमीनी हकीकतें हैं जो आप देखना नहीं चाहते, कुछ प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं आप जिनके कारणों को नहीं देखना चाहते हैं। जैसा चल रहा है, मुझे इसके अंदर नहीं जाके देखना कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ये सिचुएशन ऐसी क्यों बनी हुई है। और बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा, आपका थोड़ा इम्बैलेंस बन रहा है, मे बी स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटीरियल वर्ल्ड, आपका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कहीं टू ऑपोजिट्स में आपको बैलेंस बिठाने की जरूरत है, आउटर वर्ल्ड में और अपने अंदर भी। और बैलेंस स्टेट में इश्यूज के कॉजेस को एड्रेस कीजिए। कारण क्या है इन चीजों का? जब कारण देख लेंगे, उसका सोल्यूशन समझ आ जाएगा, अच्छा ये कारण है, इसका ये सोल्यूशन, उसको फिर एग्जीक्यूट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? तो कारण देखने से डरिए मत। और इसके अंदर ये है कि आपका ये रीडिंग बता रही है कि आपका ना, या तो कुछ लोगों पे, दुनिया पे या अपने आप पे, किसी चीज पे आपका फेथ हिल गया है, आपको फेथ नहीं रहा, उससे भी आप थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं करना वाली बात। फिर आप अपनी समझ भी नहीं यूज कर रहे। जब ये ही आ गया कि मेरे को देखना ही नहीं, तो फिर मैं अपनी समझदारी क्यों लगाऊंगी? क्या पता कोई ऐसी चीज आपके साथ हुई है जो आपने विजडम करी, समझदारी करी, आपको उसका वो रिजल्ट नहीं मिला या कुछ बुरा ही फल मिला, तो अब आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं करना, मुझे कोई समझदारी नहीं करनी, होती होगी समझदारी, इसमें कुछ भी मैंने नहीं करनी। बट ऐसे चलेगा नहीं, है ना? आप बहुत वाइज हो, आप बहुत केपेबल हो। जिस भी एरिया में आपने फेथ लूज किया है ना, वहां देखो कुछ ऐसी चीज होगी जो आपके पास तब वो इंफॉर्मेशन नहीं थी। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम किसी का अच्छा करेंगे तो वो बुरा नहीं करेगा अपने साथ, और अगर कोई बुरा कर देता है तो हमारा फेथ लूज हो जाता है, ऐसे कहते हैं ना। एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, इट मे नॉट बी ट्रू फॉर यू, बट अगर आपको ये पता हो कि जो लोग डरते हैं या जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करते हैं, आप अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से काम कर रहे हो। तो जस्ट बिकॉज आप अच्छे हो रहे हो, इसका मतलब नहीं है कि वो भी आपके साथ अच्छा ही होगा। तो ये अगर नॉलेज आपको पहले होती तो आपकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती, है ना? तो जहां भी फेथ लूज हुआ है, वहां देखो, आर यू मिसिंग सम इंफॉर्मेशन विच इज लाइक अ नॉर्म हियर ऑन प्लैनेट अर्थ। तो वो जब देख लोगे
तो आपका फेथ संभलने लगेगा, ठीक है। और आप इतने वाइज हो और आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, बस उसको सिर्फ यूटिलाइज करने की देर। जितने भी आपके पास हेल्प अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको वाइजली यूटिलाइज करिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी रिसोर्स, एंड यू नो हाउ टू डू इट। आपके अंदर उतनी समझ है, आप बस यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अब जो हो गया पास्ट में ठीक है, लेकिन अब आप गैदर करो अपना करेज और अपनी सूझबूझ से प्रॉपरली सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो। आप पे कोई कर्सेस का इंपैक्ट था जो अब जा रहा है, चक्रा में पॉजिटिव मूवमेंट आया। अगर आपने स्पेसिफिकली कोई हीलिंग्स करी है कर्स को लेके, तो दे आर शोइंग द कर्स चक्रा इज ओपनिंग अप। फिर आपने बोलना भी शुरू करा है, आप अपनी बात कहने लगे हो अपने आप से, दूसरों से। प्लीज कंटिन्यू दैट, उसको और करना है अभी। अपने में विश्वास रखते हुए आगे चलो। और जो आपकी ट्रूली कोई एक ऐसी डिजायर हो सकती है, या एक सेक्शन, एक एरिया में ऐसी डिजायर हो सकती है जहां आपने अपने आप को शट कर लिया है, मेरे को तो देखना नहीं इस तरफ कि मेरी क्या डिजायर्स हैं। देख तो लो, देखोगे तो समझदारी आप में इतनी है कि आप अचीव कर लोगे, किसी भी तरीके से आप कर लोगे। यू आर अ विनर, यू विल अचीव इट। तो देखो तो सही कि मेरा सपना ये है, और जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं वो करूंगी या करूंगा तो ये डर है, वो डर है, ऐसा कुछ है तो उसको देखो। डर है भी तो भी आपकी इच्छा तो है ही ना, तो इच्छा को मार के तो कैसे चलेगा। देखो ये लाइफ टाइम मिली, अपने पूरी इच्छाएं कर लो पूरी, ठीक है। अपनी एफर्मेशन जरूर करिए इस मंथ की, एंड ये ब्लॉकेजेस खुलेंगे। लेट मी नो आपको एफर्मेशंस का कैसा रिस्पॉन्स रह रहा है, ठीक है। बाय। नेक्स्ट वी कम टू सैजिटेरियंस। सैजिटेरियंस, आपको थोड़ा ज्यादा काम करना है, आपके चक्रस ज्यादा आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपने लास्ट टाइम ज्यादा काम नहीं किया है, और अगर आपने किया है सो डोंट गेट डिसहार्टेंड, अभी थोड़ा काम ज्यादा करने की जरूरत है, और भी बचा है। तो किस पे, एक तो सोलर चक्रा बिग टाइम काम करना है, पावर स्ट्रगल्स चल रहे हैं आपके कहीं ना कहीं। दूसरा क्राउन चक्रा पे काम करना है, डिस्कनेक्टेड नहीं होना है, और एक विन विन सिचुएशंस इन लाइफ अपने को फ्लो करना लाइफ के साथ, ठीक है। अब आपकी जो बाकी रीडिंग है वो भी बहुत कुछ बता रही है, लेकिन उसमें से जो मेन चीज पे आपको ध्यान देना है, आपको अब्यूज बंद करनी है। अपने को अब्यूज करना बंद करना है, दूसरों को भी अब्यूज नहीं करना है। अब्यूज की एनर्जी से बाहर आना है। लोगों से बातचीत, इंटरेक्शन बहुत रिस्पेक्टफुली करनी है, डिग्निफाइड वे में करनी है। कुछ कर्सेस का इंपैक्ट है, प्रोबेबली वही आपको चीजें खुलने नहीं दे रहा आपके लाइफ में। तो चेकआउट इन योर पर्सनल रीडिंग्स के कर्स का इंपैक्ट है कि आपके पर्सनल रीडिंग पे, तो ये कर्सेस क्लियर करिए। उससे क्या होगा, आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी बात कह पाएंगे और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ेंगे। खुद दूसरे के लिए नहीं, मैं आज क्या कर सकता हूं, उस तरफ, ये सब आपके अंदर आएगा। और एक पॉजिटिव मूवमेंट है आपके चक्रास में, जहां आपको ऐसा लग रहा था आपको अपना रोल ही समझ नहीं आ रहा, यहां मैं किस लिए हूं, क्या कर रहा हूं, मेरा रोल क्या है, यहाँ पे कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील नहीं हो रही थी, वहां पे कुछ कुछ पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ है उन एरियाज में। तो ये चक्रास आए हैं आपके। मेन चीज यही है, अब्यूज में पार्टिसिपेट नहीं करना है। एफर्मेशन जो आपकी इस मंथ की है, प्लीज वो करिए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बाय। So, this is what the reading is for all the zodiac signs this month. And जिन लोगों ने सारी रीडिंग सुनी है, thank you so much for spending your time with me. And I hope you got certain pearls of wisdom. And do let me know in the comment section whether you are liking these readings, you want me to continue. Otherwise, December I will do, but then I will take a call whether I should continue doing these readings in the next year. If you want it, just put it in the comment section, okay? And how are these readings helping you? If you put that, it will also keep me going, right? Now the collective message. So the collective message is, see,
द ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज इवॉल्विंग. सो ऐसे कह रहे हैं 5th डायमेंशन तक आना है. 5th डायमेंशन आपका थ्रोट चक्रा, विच इज ऑल अबाउट ट्रूथ. तो कितनी सारी रीडिंग्स में आपने देखा ऑनेस्टी, अब्यूज नहीं करना. तो जब आप अपने से झूठ बोलते हो ना, तो आप अब्यूज ही कर रहे हो. जब आप किसी से भी झूठ बोल रहे हो, वो अब्यूज ही कर रहे हो. जब आप सच पे रहते हो तो अब्यूज नहीं होती. तो बेसिकली द कलेक्टिव मैसेज इज रेज योर वाइब्रेशन. ये जो दुनिया में हो रहा है और ये जितने चैलेंजेस उठ के आ रहे हैं ह्यूमैनिटी में, कलेक्टिवली जो फील्ड में उठ के आ रहे हैं, इसका इलाज क्या है? रेज योर वाइब्रेशन, राइज अबव इट, वाइब्रेट अबव द नेगेटिविटी एंड लोअर एनर्जीज. मेडिटेशंस करिए, कुछ चैंटिंग्स करिए, ये इस तरह की एफर्मेशंस वगैरह करना, कोई और हीलिंग टेक्निक सीखिए जिनसे कि आप अपने अंदर हैवी एनर्जीज, ब्लॉक्स को क्लियर करें. तो जब वो हैवी एनर्जीज आपके अंदर से क्लियर होंगी तो खुद ही आपकी वाइब्रेशन रेज होगी. और एक अपना खुद का एक डायरेक्ट कनेक्ट बनाइए यूनिवर्स के साथ. जस्ट बैठ जाइए, चाहे आपको कोई मेडिटेशन नहीं आती, आप जस्ट अपने साथ बैठ जाइए, थोड़ा ब्रेथ को ऑब्जर्व कर लीजिए. डोंट ट्राई टू मॉड्यूलेट इट और चेंज द पैटर्न ऑफ योर ब्रेथ, जस्ट ऑब्जर्व इट. चाहे यहां पे नॉस्ट्रल्स और इस एरिया के अंदर ब्रेथ पे फोकस करिए, जस्ट ऑब्जर्व. इससे भी एक फोकस और ध्यान बनना शुरू होगा आपका. अपने साथ बैठिए और ब्रह्मांड एक पूरी ऊर्जा है, चैतन्य है चारों तरफ फैला हुआ, उससे एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए. कोई बड़े बड़े टेक्निक्स नहीं चाहिए, बस जस्ट बी प्रेजेंट, स्पेंड सम टाइम इन नेचर, दैट विल ऑल्सो हेल्प. ठीक है. ऑपरेट फ्रॉम योर ट्रूथ. अब वो वक्त आ गया है ह्यूमैनिटी के लिए कि झूठ पे नहीं चलेगा. आज तक चल गया होगा आपका, अब आगे आगे झूठ नहीं चल पाएगा. सच पे चलने में चाहे दिक्कत आए तो अपने से तो सच बोलना है. दूसरों को आप कुछ भी बोलिए, अगर आपको लगता है कि भाई इससे ऐसे बोल के काम हो जाएगा तो वैसे करना है वैसे करिए, लेकिन खुद से झूठ मत बोलिए. एक सेइंग है, कोटेशन है, कैसे कहते हैं, डोंट बाय योर ओन लाइज. मतलब जो आपने झूठ बनाए बोलने के लिए, उसको खुद ही मत सही मान लीजिए. जानिए कि आपका सच क्या है और मैं ये जो बोल रहा हूं, जो सच नहीं है, वो किस लिए बोल रहा हूं, ये अचीव करने के लिए कर रहा हूं. तो क्या सच से भी वो अचीव हो सकता है? या तो डिप्लोमेसी यूज करिए. सो डिप्लोमेसी और हिपोक्रेसी में क्या फर्क है? हिपोक्रेसी झूठ है और डिप्लोमेसी ये है कि ये सच तो ये है, लेकिन हमारा पाला जिन लोगों से पड़ा है वो लोग तो बिल्कुल झूठे हैं, या वो नहीं सुनेंगे, या वो रिजिडिटी है. तो मैं कैसे वाइजली अपना रास्ता नेविगेट करता हूं, वो डिप्लोमेसी है. डिप्लोमेसी इज अ स्किल. वो झूठ पे बेस्ड नहीं है, हिपोक्रेसी झूठ पे बेस्ड है. तो अगर आप टफ लोगों से डील कर रहे हैं, जिनसे बातचीत नहीं की जा सकती, अड़ियल है, झूठे हैं, बैड इंटेंशंस हैं उनकी, तो उनके सामने अपना सच बोल के तो नहीं चलेगा. तो वहां पे डिप्लोमेसी यूज करिए, लेकिन खुद ही अपने अंदर झूठ झूठ कहानियां मत बना लीजिए. सी व्हाट विल वर्क फॉर यू. ठीक है. अपना ट्रूथ हो गया, फिर दूसरों का भी सच जानिए. उनका बिहेवियर कुछ और हो सकता है, लेकिन उनका सच क्या है, दूसरा सिचुएशन का सच क्या है. आप फैंटेसी वर्ल्ड में मत रहिए. प्लीज फेस द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. ये ट्रूथ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. अब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. कैसे पता चला मुझे? सारी रीडिंग्स में ये कॉमन है. ये बात कलेक्टिवली ह्यूमैनिटी से बोला जा रहा है, तुम्हारा हो गया क्या झूठ का? सच पे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? तो जैसे कि जब 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन में ह्यूमैनिटी ने शिफ्ट किया था, तब ये था कि तुम पावर, ग्रीड, इन सब में रहना चाहते हो या लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस में आना चाहते हो. तो मेजॉरिटी ने लव, कंपैशन ये सब चूज किया, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज हुई. अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव आ गया है 5th डायमेंशन, जो कह रहा है सच पे जियोगे कि नहीं. टेस्टिंग होती रहेगी आपकी, झूठ चलेगा नहीं. आपके अंदर ही प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, क्योंकि इतने झूठ बोलोगे कि दिमाग फिर समझ नहीं आएगा किससे क्या बोला था, कब क्या बोला था.
झूठ अब डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कलेक्टिव है, सच पे रहिए, और जो भी चॉइसेस आप मेक कर रहे हैं वो आपके सच पे रखिए। आपका सच है क्या, आप ट्रूली चाहते हो क्या, उस बेस पे ही चॉइसेस मेक करिए। एंड अब्यूज जितना भी दुनिया में देख रहे हैं, अपनी लाइफ में हो रहा है, वहां पे किसी भी तरह से अब्यूज में पार्टिसिपेट नहीं करना, अपने को अलग रखो उससे, ये बहुत जरूरी है। और इस टाइम में हमने ये भी देखा कि अबाउट 50% ऑफ द ज़ोडिएक साइंस जितने भी हैं, उन्होंने या तो इस बारी लास्ट मंथ की एफर्मेशंस नहीं करी हैं, या लास्ट मंथ में जो विजडम आपको दी थी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ गो बैक टू द अक्टूबर रीडिंग एंड लिसन टू इट अगेन, टेक दोज विजडम्स, क्योंकि कुछ काम और करना बाकी है या तो हुआ ही नहीं है। तो वो लास्ट मंथ की भी गाइडेंस फॉलो करिए और ये मंथ की भी करिए, एंड अपनी समझ को बढ़ाइए। जहां समझ नहीं है वहां समझ डेवलप करिए, ज्ञान लीजिए, समझिए चीजों को, लेकिन इवेंचुअली अपनी समझ पे ही काम करना है। So this is the reading for you. Let me know in the comment section, was the reading helpful? Was the guidance helpful? Love you all. Bye.